in the semi-finals yesterday. He's in terrific form here. And Yatin onto the bowling mark. They are playing their fourth match on the trot here. And never easy. This tournament has been organized by Anjuna Police Station under Fit India Movement, put up by the Government of India, and both the batters off the mark with single apiece. Also, Anjuna Police Station organizing a health camp in which Manipal Hospital were involved in checking the health of every individual for the last 2 days. Oh, play and a miss here, play and a miss. Dropping shot, plays to mid-off and picks up a single. Yatin seems to be in slight worry with his footing. Hello. Fuller line delivery, good stop in the follow through, good footwork here by the bowler. Good looking shot this time, picks up a single, and that will be all in this over. That completes the first over, score 4 for no loss. A very quiet start here by Panji Sub-Division, but we know they can shift gears in real quick time. The viewers who have just joined in us on YouTube on tenniscricket.in, Panji Sub-Division won the toss, elected to bat first, and after 1 over they are 4 for no loss. Aniket Parab. Oh, lovely, up and over, third man. What a catch this is, oh boy, you beauty. Into the third man area. Swapnesh Vedip, the fielder. Next batsman, next batter, please be ready. Yogan departs. Second over, Swapnil Fatte. Kishore. Swapnil Fatte picking up the first wicket. What a catch by Swapnesh under pressure. This is the big final. Gaurish Naik, the new batter, with massive responsibility, because Panji Sub-Division, they were known for putting good partnership for the opening stand, and in large numbers here for Panji Sub-Division, the supporters. Swapnil striking early of his very first delivery.
Gaurish Naik, the new batter replacing Yogan. He hasn't had a good outing, but this is a much crucial match for both the teams. The decider. Played into the gap, racing away from the fielder. Will it be cut off here? Oh, it races for a boundary. Gaurish gets off the mark with the boundary. The first boundary of the innings for Panaji subdivision. We have SP North, Sanidin Walson, Sajiv Bhadarvi, Deputy Superintendent of Police, SBO Mapsa, PI Panaji Police Station, Sir Nikhil Palekar, PI Old Goa, Sir Satish Padwalkar, PI Traffic Anjuna, Sir Gaurish Parab, PI Purvarim, Sir Anand Gaukar, PI Security, Sir Raghuba Kamath, and the organizer, Police Inspector Sir Prashal Desai. A big mistake this is made. A big mistake. It was a simple chance, but couldn't hold on. Gaurish breathes. Gaurish can breathe easy now. It was a straight chance at mid-off region. Swapnil will be feeling unlucky. You can see by the body language of his, the face says it all. Was almost there picking the second wicket. Wanted a single but denied. Score 10 for 1. The second over in progress. Played on the onside. This will be another boundary. Gaurish has got his form going in the much important finals. 2 boundaries already. And this all runs will be hurting Madgaon subdivision, because Gaurish was dropped when he was on just 4 runs and now he is batting on 10. Yes, even for the tennis ball cricket tournament early this year, when Anjuna Police Station organized the tennis ball cricket tournament, we had Sanidin Walson as a guest of the finals, and today we are blessed to have him for these finals as well. Played harder this time and striking the foot of the bowler. A dot ball to finish the over. Completion of 2 hits, 14 for the loss of 1 wicket. Three bowlers can bowl 2 overs and 2 bowlers will be bowling 1 over each. So Yatin into his final over. Score 14 for the loss of 1 wicket. You can see Yatin shortening his run up. Never easy when you're playing 4 matches on the trot. The body should be supporting the players. Played with good footwork here. Extension of the front foot, pressing the front foot, driving the ball through the cover region, picks up a single, score moves on to 15, and that brings Gaurish on strike. Gaurish has showed some positive intent ever since he has arrived at the crease. A boundary through the point region and a boundary through the square leg region. So shots both on the off and the on side.
Lovely shot. But there is a protection over there. A slight fumble. And pushing for the second. As to the left hand side, Panjim Gymkhana Academy coach Sakun Kamath can be seen coaching young players, and on the right hand side we had Robin D'Souza coaching the summer camp, both former Ranji players. A swing and a miss this time from Gauresh. Wide signal by the umpire. This will definitely help. Score moves on to 18. Puts the ball in the gap. Third boundary for Gauresh. He is climbing on the opportunity that was provided to him. Has added 12 more runs ever since he has been dropped. 16 of just 7 balls, 3 boundaries, striking at 228.57 strike rate. Yes, by the time the signal is received and has been broadcasted on the television or on your computer screen or on the monitor of mobile, there is a short delay. A lovely shot this time using pace of the bowler into the point region. A single. Played on the onside, very risky. Aniket, very, very risky. That tells in what sublime form he is. Yesterday, 20 balls, 40 runs in the semi-finals. That earned him the man of the match as well. He'll be eyeing to play a big knock here. Short ball outside edge and third man. Oh, good stop this is, because the ball was travelling. I think by the body language, it seems like the ball might have touched the ropes. Yes, a good sporting spirit by the fielder as well, just signalling a boundary. We have IG Sir Omvir Singh also arriving. A warm welcome to you, sir, on behalf of Anjuna Police Station. DIG Madam Aslam Khan has also arrived. A warm welcome to you, Madam, on behalf of Anjuna Police Station. Score moves on to 29. Fuller length, drives through the cover, aerial, fielder. Oh, he makes no mistake. Big wicket this is. Aniket departs. Gauresh departs in fact. Yes, Gauresh departs. Gauresh was looking to go over the covers, but falling in the trap, finding the fielder at deep extra cover.
new batter Girdhar Gowde. $29 for 2. Gauresh just departing. Aniket still there. And I think Panji subdivision will be wanting Aniket to play till the last over has been bowled. Swapnil Phatti into his second over. 2 wickets he has picked up in the finals. Lovely drive through the offside. A very good timing to get off the mark. Score moves on to 30. That brings Aniket on strike. Oh, good shot down the ground, but there is long off in position. And Swapnesh cuts it off just a single. The catch which was taken by Swapnesh to get rid of Yogan was amazing. And the third man running forward, never easy, because the ball was also travelling with some pace. Good looking shot, and in the gap, races for a boundary. Another sublime touch can be seen here from the batter. Score moves on to 35. Girdhar Gowde has also made a strong announcement of his arrival at the crease with the way he struck this boundary. Very crisply timed through the covers. Played on the onside. A quick single by the two batters. That single takes the score on to 36. That completes the 4 overs halfway through the innings. 36 for the loss of 2 wickets, going at 9 runs per over. There will be a change in commentary box. Over to Sir Ashok Naik. इस्टिमेट गेले आमचे आमचे नावाक ते एकदम माशी लागलं तर इस्टिमेट गेले कामात. हेलो, थैंक यू तुषार. 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ. 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर. सामने गेंदबाजी में परिवर्तन. यासिन सिंगनगोट्टी अपने बॉलिंग मार पर और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर गिरिधर उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे. फाइनल का मुकाबला. सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से. और 5वें ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर. छोटी गेंद इस बार बैकफुट पर निकले. पुल किया गेंद को ऑन साइड पर. मिड विकेट पर फील्डर. और जब तक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते
एक रन इसी बीच में पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 37। अनिकेत के साथ गिरिधर, ये जोड़ी मैदान पर, और बॉलिंग मार्ग पर यासिन सिंगनगुट्टी सामने से दूर वाले छोर से। राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर ये जोड़ी मैदान पर टॉस जीता इस अंतिम मुकाबले में पंजी सब डिवीजन क्रिकेट टीम ने, और टॉस जीतकर पहले तुरंत फैसला बल्लेबाजी करने का। और बैकफुट पर निकले, इस बार फिर से पुल किया गेंद को ऑन साइड पर, और वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर लगभग काउ कॉर्नर पर गेंद को फील्ड करते थ्रो करते जब तक एक रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ स्कोर थोड़ा सा फिर से आगे बढ़ता हुआ 38 रन पर पहुंचा। फाइनल का मुकाबला आज, अगर मरगांव क्रिकेट टीम की मैं बात करूंगा, लगातार मैच खेल रहे हैं, थोड़ी सी थकान जरूर महसूस होगी खिलाड़ियों को। और पंजी क्रिकेट टीम कल से लेकर अब जो कि फाइनल में बैकफुट पर निकले, हल्के से कट किया ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट पर फील्डर, फिर से सिंगल। बहुत अच्छी गेंदबाजी आज खासा प्रभावित किया यासिन सिंगनगुट्टी ने, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, फील्डिंग भी बहुत अच्छी रही, गेंदबाजी भी रही, और सिंगल बड़ा स्कोर में 39 लॉस ऑफ 2 विकेट। बिल्कुल 2 बार मैन ऑफ द मैच। शानदार जानकारी रोहित नाइक हमारे साथ जो स्कोरिंग की पूरी जानकारी देते हुए। इस बार विकेट कीपर के हाथों से थोड़ी सी गेंद दूर निकली, एक रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। अंपायर का वाइड बॉल का इशारा था और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर में, और इस सिंगल डबल रन के साथ स्कोर पहुंचा 41, 41 रन पर। 8 ओवर का मुकाबला है, फाइनल का मुकाबला हंजुना पुलिस स्टेशन जिनसे और से आयोजित ये टूर्नामेंट। ऑल गोवा सब डिवीजन टीम। ओवर पेज गेंद, एक बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर दूर है और गेंद निकली 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बड़ी देर के बाद एक चौका बनता हुआ स्कोर में, और इन 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 45, 45 रन पर। एक बेहतरीन शॉट बल्ले के बीचों बीच बिल्कुल हाफ वाले पर लेकर, फील्डर जरूर था लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन उनके लिए बिल्कुल मौका नहीं था, बहुत दूर थे फील्डर। थोड़ा सा फिर से फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर, स्कोर बोर्ड पर टोटल 45, 45 रन 2 विकेट पर। सामने स्ट्राइक पर गिरिधर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर अनिकेत। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड एंड बाउंड्री पर गेंद, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। थोड़ी से बिल्कुल स्लिप पर गेंद खड़ी हो गई थी, लेकिन मौका नहीं मिला फील्डर को कैच का। 2 चौके लगातार लेफ्ट हैंडर बैटर गिरिधर के बल्लेबाजी में, और 2 चौके के साथ स्कोर पहुंचा 49, 49 रन 2 विकेट पर। अच्छा क्रिकेट, एक सेंसिबल क्रिकेट, ढीले हाथों से खेला, सिर्फ दिशा दी, गली पर फील्डर, एक सिंगल बन गया, और इस 1 रन के साथ 50 रन जो कि पूरे होते हुए पंजी सब डिवीजन क्रिकेट टीम के 50 रन। टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन 2 विकेट पर। सामने से गेंदबाजी में परिवर्तन, 6ठे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर।
सामने से गेंदबाजी में परिवर्तन, किशोर आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। आज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इन्होंने भी की है और वो बॉलिंग बार पर छठे ओवर की शुरुआत होती हुए मैदान पर सामने लेफ्ट हैंडर बैटर गिरिधर उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। ऑप्टम से थोड़ी सी बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ से स्कोर पहुंचा 51, लॉस ऑफ 2 विकेट। 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर का मुकाबला, फाइनल का मैच इस प्रतियोगिता का। बैकफुट पर निकले, हल्के से स्टीयर किया गेंद को थर्ड मैन की तरफ और फिर से एक सिंगल बनता हुआ स्कोर में। सिंगल डबल के साथ पिछले ओवर में 2 बेहतरीन शॉट चौके लगे गेंदबाजी पर यासिन सिंगनगुट्टी की और उसके बाद किशोर आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। लगातार 2 गेंदों पर सिंगल पर रोक लगा दी है और सामने अनिकेत उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। सभी मान्यवरों का, सभी दर्शकों का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। मैं अशोक नाइक और मेरे साथ तुषार नाइक हमारी स्कोरिंग की जानकारी दे रहे हैं रोहित नाइक और सामने दूर वाले छोर से एक बार फिर से किशोर अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार पुल किया गेंद को ऑन साइड पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते बड़े आराम के साथ एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल और स्कोर पहुंचा 53। खेल छठे ओवर का, इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल बाकी है। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर जोड़ी, थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई है मरगांव सब डिवीजन क्रिकेट टीम को फील्डिंग में, क्योंकि बार बार तकदीर भी करनी पड़ती है। बढ़िया शॉट बैकवर्ड पर निकले, इस बार कट किया, बहुत ही लाजवाब शॉट, गेंद चली गई कवर पॉइंट बाउंड्री और थर्ड मैन के बीच में, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही सुमधुर संगीत जो हमारे साथ जुड़ चुका है। दोस्तों आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। स्कोर चौके के साथ आगे बढ़ा 57, लॉस ऑफ 2 विकेट, 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हाफ वाले पर लेकर एक सुंदर शॉट ऑफ ड्राइव का, 2 फील्डर अगल बगल में, बिल्कुल थोड़ी सी मिस फील्डिंग और उसी का फायदा उठाते हुए 2 रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। एक बेहतरीन शॉट बॉलर के पास से ऑफ ड्राइव का, हाफ वाले पर गेंद को लेकर बल्लेबाज गिरिधर के बल्ले से मिले 2 रन और टीम के खाते में 2 रन जुड़ गए और स्कोर पहुंचा 59 पर। 10 रन के साथ रन बना रही है इस बार अक्रॉस खेला, थोड़ा सा ऑन साइड पर और मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, दूसरे रन के लिए थोड़ा सा निकलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा गेंद को फील्ड करते हुए बैकअप हो रहा था, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में और इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर पहुंचा 60 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर। किशोर गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने बैटर है अनिकेत, नॉन स्ट्राइकर इन पर लेफ्ट हैंडर बैटर गिरिधर। 8 ओवर का मुकाबला, फाइनल का मैच मैदान पर इन 2 टीमों के बीच में चलता हुआ। एक ओर से मरगांव सब डिवीजन क्रिकेट टीम तो दूसरी ओर से पंजी सब डिवीजन क्रिकेट टीम। यह गेंद इस बार नीचे रही, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक सिंगल फिर से बन गया स्कोर के खाते में, अतिरिक्त रन और सिंगल के साथ स्कोर भी आगे बढ़ा 61, लॉस ऑफ 2 विकेट। 61 रन 2 विकेट पर।
आगे निकले इस बार हाफ वॉली पर लेकर एक बहुत ही बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। थोड़ा सा आगे निकले कदमों का इस्तेमाल किया और बहुत ही बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 4 रन। चौके के साथ स्कोर पहुंचा 65 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टोटल 6 ओवर समाप्त हुए और 6 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 65, 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर। छह ओवर का खेल समाप्त हुआ। 7वें ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में परिवर्तन। और सामने से स्विनित दिखाई देते हुए बॉलिंग मार्ग पर। 65 टोटल स्कोर, 65 रन। बैकफुट पर निकले, बल्ले का मुंह खोला, गली पर फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर में। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 66। 66 लॉस ऑफ 2 विकेट। 7th ओवर इन प्रोग्रेस। स्विनित गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने बैटर है अनिकेत, उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। तेज गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, थोड़ी सी गुडलेस स्पॉट पर उछाल लेती हुई गेंद। बल्ला तो घुमाया था लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ साइड पर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक फील्डर है, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। मरगांव सब डिवीजन क्रिकेट टीम मैदान पर फील्डिंग करते हुए, सामने टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है। ओवर पिच गेंद, एक सुंदर शॉट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद, 4 रन के लिए। थोड़ी सी स्लॉट में गेंद मिली और बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बिल्कुल एक बढ़िया टाइमिंग इस बार बल्लेबाजी में। 4 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। इस चौके के साथ स्कोर टोटल 70 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। खेल जारी 7वें ओवर का और स्विनित सामने से दूर वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बहुत ही लाजवाब कवर ड्राइव, डीप लॉन्ग पर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद चली गई, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। ओवर पिच गेंद हाफ वॉली पर और बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग इस बार। जो गैप था लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से, बिल्कुल कोई मौका नहीं था फील्डर को गेंद को रोकने का, और चौका और 4 रन स्कोर के खाते में मिलते हुए और इस चौके के साथ स्कोर बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई देते हुए पंजी सब डिवीजन क्रिकेट टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 74 लॉस ऑफ 2 विकेट। इस बार फिर से थोड़ा सा आगे निकलकर खेला, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, मिड विकेट पर फील्डर दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। बहुत ही शानदार दौड़ विकेटों के बीच में, अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल एक ही एक्शन में गेंद को उठाया, थ्रो किया विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। 2 रन मिले स्कोर में, 2 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 76 लॉस ऑफ 2 विकेट।
और इस बार हवाई फायर देखना होगा, गेंद खड़ी हो गई मिड ऑफ पर, फील्डर गेंद हाथों से छूटी, क्या छोटा, अपने आप को ठीक बैलेंस नहीं कर पाए इस बार शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते फिर से 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। 78 टोटल स्कोर। 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 7 ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन 2 विकेट के नुकसान पे आखिरी ओवर, लास्ट ओवर टू गो, अंतिम ओवर का खेल बाकी, और देखना होगा आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं सामने से। तो आखिरी ओवर 8वां ओवर और सामने यासिन सिंगनगोट्टी बॉलिंग मार पर, बैटर है गिरिधर। और बेहतरीन शॉट, बल्ले के बीचों बीच एक सुंदर शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए। ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर लेकर एक बढ़िया शॉट इस बार 4 रन के लिए। बैटर गिरिधर के बल्ले से चौका निकला और 4 रन के साथ से स्कोर पहुंचा टोटल 82, लॉस ऑफ 2 विकेट। फाइनल का मुकाबला, आखिरी ओवर का खेल जारी मरगांव सब डिवीजन क्रिकेट टीम की ओर से, और आखिरी ओवर के 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन हो रहा है मैदान पर, ऑफसाइड को फील्डर को थोड़ा सा हटा दिया और एक फील्डर को बढ़ा दिया गया। शायद लेफ्ट हैंडर बैटर हमेशा जो कि बिल्कुल गिरिधर बहुत ही अच्छे शॉट लगा रहा है ऑफसाइड पर, इसीलिए एक फील्डर को और बढ़ाया। बैकफुट पर निकले बिल्कुल, और कप्तान की सही सोच, जो फील्डर बढ़ाया उसका फायदा हुआ, वहीं पर गेंद चली गई, एक सिंगल रोक लगा दी और एक रन के साथ से स्कोर पहुंचा 83 पर। 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर पंजी सब डिवीजन क्रिकेट टीम टॉस जीतकर इस अंतिम मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करती हुई 83, लॉस ऑफ 2 विकेट। बढ़िया शॉट, ओवर पिच गेंद, पहले आगे निकले थे कैच के लिए, लेकिन जैसे ही देखा गेंद दूर है और बिल्कुल सही फैसला, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल बन सकता था कैच। एक सिंगल बना स्कोर में इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 84, लॉस ऑफ 2 विकेट। सामने एक बार फिर से आते हुए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गिरिधर, डाउन स्ट्राइकर एंड पर अनिकेत, और बॉलिंग बार पर यासिन सिंगनगुट्टी अगली गेंद लेकर। सुंदर शॉट, बल्ले के बीचों बीच लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर दूर है, और जब तक आते गेंद को कलेक्ट करते, गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक फिर से 1 रन मिला स्कोर के खाते में। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बड़ा शॉट बिल्कुल नहीं दे रहे हैं यासिन सिंगनगुट्टी दोनों बल्लेबाजों को। दोनों बल्लेबाज बिल्कुल सेट हो चुके हैं, एक बड़ी अच्छी साझेदारी दोनों के बीच में जरूर, लेकिन आखिरी ओवर में बिल्कुल स्लोवर वन। इस बार थोड़ा जल्दी खेल बैठे, गेंद खड़े हो गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, बड़ी देर के बाद एक सफलता मिलती हुई। आउट होकर वापस अनिकेत, जो तीसरा धक्का टीम को, पंजी सब डिवीजन क्रिकेट टीम को, लेकिन एक बड़ी साझेदारी बनी दोनों के बीच में। स्कोर रुका हुआ 85, लॉस ऑफ 3 विकेट, और अनिकेत ने बनाए अपने बल्लेबाजी में खुद का व्यक्तिगत स्कोर। अनिकेत का
29 रन बनाए, 29। एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की अनिकेत ने अपने टीम के लिए 29 रन बनाए। और न्यू बैटर मैदान पर विशाल गांवकर। आखिरी ओवर का खेल जारी, यासिन सिंगनगुट्टी और एक ब्रेक थ्रू दिलाते हुए स्कोर रुका हुआ 85 पर 3 विकेट के नुकसान पर। 85 लॉस ऑफ 3 विकेट। न्यू बैटर विशाल सामना करेंगे और उनका साथ दे रहे नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर है गिरिधर। एक 10-12 कदमों का छोटा रनअप राइट आर्म ओवर द विकेट। यासिन सिंगनगुट्टी अपने बॉलिंग मार पर लास्ट बॉल टू गो। इनिंग की स्पेल की समाप्ति की ओर यासिन सिंगनगुट्टी और सामने बैटर है विशाल गांवकर। और बल्ले से बाहरी किनारा लेते हुए इस बार कट किया गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और 2 रन जो कि स्कोर में 2 रन के साथ से टोटल आज 2-3 बार बिल्कुल 87 का टोटल देखने को मिल चुका है और टारगेट है 88 का मैच को जीतने के लिए। वो भी 8 ओवर का मुकाबला रहा तो टोटल हो चुका है स्कोर 87, टारगेट है 88 का। एक अच्छी इनिंग खेली अनिकेत ने और गिरिधर ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। बहुत ही शानदार इस लेफ्ट हैंडर बैटर ने अपने टीम के लिए एक बहुत अच्छी इनिंग खेली। 32 रन बनाए, उससे पहले 16 गेंदों में, उससे पहले अनिकेत ने भी एक बड़ी इनिंग खेली, 29 रन बनाए। तो ये 2 बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के बीच में बड़ी साझेदारी बनाई और उसी के बदौलत एक सम्मानजनक स्कोर 87 और टारगेट है 88 का। मैच को जीतने के लिए दूसरे इनिंग की शुरुआत बहुत जल्द होगी मैदान पर और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ते हैं। आइए माइक्रोफोन पर तुषार नाइक के साथ।
Yes, I request Panji subdivision kindly take the field, and both the openers, please hurry up because you have to play under good light conditions before it get bad. So please hurry up.
Yes, a lovely band, brass band from Panjim Police Station. Bandmaster Francis Gracious, drum Saurav Dhargalkar, trumpet Ratnagar Shetgaonkar, Dr. Bikru Fernandez, Mario Moraes, Cristo Rodriguez, saxophone Freddy, side drum Joseph, Vittal and Omkar, and tenor saxophone Nitin Naik. Extra player, both the teams, extra player. Sunil Sinali to bowl the first over. Batters. Sapnesh. Oh, wild swing of the bat. A dot ball. Amin on strike. Swapnesh at the non-striker's end. Change in batting order. So change in batting order here. First ball dot. Amin Naik. Usually Amin Naik and Ditin used to open the innings for Madgaon subdivision, but change in batting order here. Oh, straight pass back the bowler. A single here. One coincidence that we have seen is starting the first over for both the teams, we have a left arm bowler. Yatin starting for Madgaon subdivision. Sunil Sinari for Panji subdivision. Swapnesh off the back foot of the mark as well. So both the batters off the mark. Swapnesh, this is a big match and he likes to play in big matches. Let us see what Swapnesh Vedip can do here. Chasing 88 in 8 overs, 11 runs every over won't be easy. But he has done this in the past, so he has experience behind him. Amin Naik, let us see what he can do in the power play. Oh, cleaned him up. Sinari strikes. What a good toss to win, I will say, for Panjim subdivision. They had no hesitation in the mind to bat first because chasing in the final is never easy, and especially when you lose early wickets. Amin Naik departs, and to replace him, Anup. One down batter, Anup. Yes, we have pretty distinguished dignitaries for this grand finale. SP North Sandidin Walson IPS, DYSP SDPO Mapsa Sir Jiba Darvi, DYSP SDPO Panji Sir Sudesh Naik, PI Anjuna Sir Prashal Desai, being the organizer himself, PI Anjuna Traffic Sir Gaurish Parab, PI Panji Sir Nikhil Palekar, PI Old Goa Sir Satish Padwalkar, PI Parvarim Sir Anand Gaokar, and PI Fatoda Sir Ditendra Naik, who is playing for Madgaon team. Clean him up, back to back. Sunil Sinari on a possible hat-trick. Anup, as soon as he arrives, he has to depart. Now Damodar walks in on a possible hat-trick. 2 times we have seen the bowlers being on a possible hat-trick. Will it happen on the 3rd occasion? Chasing a big target of 88. They have lost 2 quick wickets here.
It's 2 for 2. Two for two, a sorry looking scorecard for Madgaon subdivision. Oh, cuts the ball very late off the stumps. And a fumble allows us a couple of runs. Damodar gets off the mark. 4 for 2. Completion of 1 over, 4 for 2. It has been a great unit to be working together in this second All Goa Police Subdivision level white leather ball T10 cricket tournament. The tournament was covered by tenniscricket.in with 2 cameras. Thanks to Prathamesh, Omkar Sawant and Milan Patil. Beautiful scoring on Crick Euros as usual by Rohit Naik in the commentary box. Along with me, Tushar Naik, Sir Ashok Naik. The 2 officials, Sir Sujay Netravalkar and Sir Sachin Kundaikar. And taken care of entirely by the Anjuna police station. This is the second edition of T10 leather ball cricket tournament. Last year it was for North District. This time it is all Goa. And I think next year it will be a special edition. You might see different states police participating in this tournament. There will be one special team. There might be one special team from Goa along with other states competing. That single takes the score on to 5. And I think only Anjuna police station can make it possible. Oh, lovely shot. Good timing as well. From Damodar gets a single. Swapnesh. They have lost 2 wickets, but this is just 8 over match. So if any 2 batters can score 30 or 40 plus, you can win the match from here. It's not a matter of 50 overs match, it's just a matter of 8 overs. So anything is possible in this format. Short ball, finds the fielder at cover, picks up a single, score moves on to 7. This is the last over before the power play comes to an end and the field will be spreading out. Short ball, a wide swing of the bat and a dot ball. Short ball again, looking to cut the ball through the offside. Back-to-back dot deliveries here. Score unmoved, 7 for 2. Oh, great bowling, great bowling. And a quick single here. Takes the score on to 8. Completion of 2 overs, 8. 8 for 2 after 2. Another 80 required in 36 balls. 36 balls, 80. Almost 15 runs required every over. The required run rate has gone up to 13.33.
Oh, good shot. This is, but there is a protection at long on. Damodar picks a single, gets off strike. That brings Swapnesh. Required run rate 13.54, 9 for 2. Oh, the ball just nipping back in from Sunil Sinari. What an excellent bowling this has been. Good to see left arm bowlers performing to their expectation. Can move the ball in both the direction. That is their speciality. We have seen the star bowlers, left arm bowlers for India, Zahir Khan, Ashish Nehra, what they have done. Irfan Pathan, not to forget them. Oh, the ball again nipping back and quick single. So, lacking boundaries here, Madgaon subdivision. Steers the ball into the wide third man area. Picks up a single, score moves on to 11. Another great delivery. Swing and a miss, a dot ball to finish the third over. Completion of 3, it's just 12 for 2, going at 4 runs per over. Gaurish Naik might be bowling the 4th over. The required run rate has gone up to 15.2. 5 overs remaining. And I think Sunil Sinari will be leaving the field. He has bowled his 2 overs. And he has done the job for his team. 2 overs, 8 runs, 2 wickets. Gaurish Naik. Slower ball to start with. Leg by signal from the umpire. Yes, we can see Sir Sahil Varan getting a pat on his back from Sir Sudesh Naik, appreciating the efforts put by them. A good save here by the wicketkeeper. By signal from the umpire as well. So runs coming in singles, that won't help to the cause here for Madgaon subdivision. Down the leg side, good collection, very good collection by the wicketkeeper. Score moves on to 15. Gaurav, the wicketkeeper. Oh,
another change of pace. Another change of pace. White signal this time by the umpire. One more run added. Sixteen for two, 3.3 overs have been bowled so far. Looking for a single. Dot ball. Seems like a one-way traffic at the moment here in the finals. Loud appeal for leg before. And leg by signal from the umpire. So just a single bound. In fact, no boundaries have been scored in the run chase. Cleaned him up. Gauri strikes now. New batter Yasin Singh and Gutti. New batsman. New batsman. Yasin. New batter Yasin. He has played a valuable knock in the first two matches, but it is a big ask from him now. It will be a huge ask from Yasin to chase this target from the position that they are in. 17 for 3. Siddesh Mindkurkar to bowl the fourth over. They require another 71 in 24 balls. And a change in commentary box over to Sir Ashok Naik. 4 overs, 17 for 3. थैंक यू तुषार 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ बैकफुट पर निकले इस बार हल्के से कट किया गेंद को ऑफसाइड पर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते और जब तक थ्रो करते तब तक एक रन इसी बीच में स्कोर के खाते में और जुड़ता हुआ इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 18 रनों पर 3 विकेट पर 18 रन 88 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए और खेल चलता हुआ
पांचवें ओवर का 8 ओवर का मुकाबला है मैदान पर। राउंड विकेट इस बार बैकफुट पर निकला, इस बार पुल किया गेंद को ऑन साइड पर, और जब तक फिर से एक बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे क्योंकि रन रेट थोड़ा सा नीचे आ चुका है, धीमा हो चुका है, 3 विकेट भी खो चुके हैं, तो मिडिल ऑर्डर पर थोड़ा सा दबाव है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग, और एक वाइड बॉल के साथ एक रन और जुड़ता हुआ मरगांव सब डिवीजन क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में। टोटल टारगेट 88 का, बहुत अच्छी बल्लेबाजी रही। इस बार एक बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ निकलती हुई, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ 24 रन। शायद बड़ी देर तक इंतजार करना पड़ा चौके का, 5वें ओवर में पहला चौका लगा बल्लेबाजी में, और एक बार फिर से लगातार बैक टू बैक बेहतरीन शॉट, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। तो थोड़ा सा इंतजार जरूर हुआ चौके के लिए, बड़े शॉट के लिए, लेकिन लगा तो बाद में, और एक लगा, लगातार 2 चौके और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन पर पहुंचा, 3 विकेट के नुकसान पर। 60 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए टोटल, और आने वाले अभी भी इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल बाकी। बिल्कुल शानदार जानकारी रोहित नाइक हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में। हल्के ढीले हाथों से गेंद को खेला, कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन इसी बीच में पूरा किया। खेल चलता हुआ मैदान पर 5वें ओवर का 88 का टारगेट है, और स्कोर हो चुका है 29, लॉस ऑफ 3 विकेट, 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला, लेकिन जैसे देखा सिलमिड़ा पर फील्डर दूर है, गेंद को फील्ड किया, थ्रो करना चाहते थे, लेकिन जैसे देखा अपने पॉपिंग क्रीज में बल्लेबाज सुरक्षित आ रहे हैं। सही सोच, खेल समाप्त होता हुआ और 1 ओवर का 5 ओवर समाप्त हुए, और 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 5 ओवर की समाप्ति के बाद। बॉलिंग में परिवर्तन, सामने विशाल गावकर आ चुके हैं, 3 ओवर बाकी है खेल, लेकिन कहीं ना कहीं 19 रन प्रति ओवर के साथ रन रेट है, 57 का टारगेट अभी भी मैच को जीतने के लिए मरगांव सब डिवीजन क्रिकेट टीम के लिए। आगे निकले, गेंद को ड्राइव किया इस बार, और सेलमिड अप पर फिर से एक बार फील्डर आते, गेंद को फील्ड करते, और 1 रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। थोड़े से आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉट गेंदे सिंगल डबल के साथ ये मुकाबला थोड़ा मुश्किल होगा मरगांव सब डिवीजन क्रिकेट टीम के लिए। अच्छी गेंद, इस बार सिंगल के लिए निकले, शायद लगभग खतरा था, अगर अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते, निशाना लगाते गेंदबाज विशाल गावकर, तो बल्लेबाज के लिए बिल्कुल खतरा बन सकता फिलहाल। और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 32, लॉस ऑफ 3 विकेट। और बेहतरीन शॉट, इस बार कट किया बैकफुट पर जाकर, लेकिन फील्डर है मौजूद डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, और फिर से सिंगल बनता हुआ स्कोर में। सिंगल डबल के साथ ये 2 बैटर मैदान पर रन बना रहे हैं, लेकिन जरूरी है बड़े शॉट के। पिछले ओवर में 2 चौके लगे थे, लेकिन इस ओवर में अब तक कोई मौका बड़े शॉट के लिए नहीं दे रहे हैं गेंदबाज विशाल गावकर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, इस बार थोड़ा सा कंधों का ज्यादा इस्तेमाल किया था, पटकी हुई गेंद, उछाल मिली गुडलैंड स्पॉट पर,
पीछा जरूर किया था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। खेल अभी भी जारी, छठे ओवर का आने वाले इस ओवर के बाद 2 ओवर का अंतिम ओवर का 2 खेल बाकी। सिंगल फिर से एक बार स्कोर में, और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 34 पर पहुंचा, 3 विकेट के नुकसान पर। 34 लॉस ऑफ 3 विकेट। ओवर पेस गेंद, बहुत ही बेहतरीन शॉट, लेकिन सामने फील्डर के हाथों में सीधी गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, और सफलता और एक मिलती हुई विकेट का पतन होता हुआ। ओवर पिच गेंद थी, टाइमिंग अच्छा था, शॉट भी बहुत अच्छा था, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं रहा। जो अगल बगल में अगर गेंद होती तो रन बन सकते थे चौके के लिए। सामने जो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर था उनके हाथों में गेंद चली गई, सफलता मिली जो अनिकेत परब लॉन्ग ऑफ बाउंड्री। और इसी बीच में न्यू बैटर मैदान पर। बैट्समैन नेम प्लीज। न्यू बैटर स्वप्निल फड़ते। खेल इसी के साथ और एक ओवर का समाप्त हुआ। स्कोर बोर्ड पर टोटल वहीं पर रुका हुआ। आखिरी 2 ओवर का खेल बाकी। बल्लेबाजी में एक मजबूत टोटल बना दिया, टारगेट, बड़ा टारगेट, और उसका जवाब देते हुए मरगांव सब डिवीजन क्रिकेट टीम। गौरेश नाइक एक फुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर, बल्लेबाज को बेट करते हुए गेंद विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल उसी लाइन पर फिर से एक बार बिंदी गेंद। खेल जारी, 7वें ओवर का सिर्फ बची है 10 गेंदों का खेल, और 10 गेंदों में अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 54 रन। 10 डिलीवरीज 54 रन, 10 गेंदों में 54 रन। स्लोवर वन, इस बार थोड़ी नीची रही गेंद। रन लेना चाहते थे लेकिन अपने फॉलो थ्रो में बहुत तेजी के साथ आते गेंद को फील्ड करते रन की इस संभावना को समाप्त कर दिया। 7वां ओवर आने वाला, आखिरी ओवर बाकी, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला थोड़ा सा दूर होता हुआ। अच्छी गेंद, इस बार एक सिंगल के लिए निकले, अपने फॉलो थ्रो में आते गेंद को फील्ड करते, बड़ी देर के बाद 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। लेग बाइज का इशारा, और इस लेग बाइज के साथ सिंगल बनता हुआ स्कोर में स्कोर पहुंचा 35 पर। 35 लॉस ऑफ 4 विकेट। फिर से स्लोवर वन, ज़्यादा फ्लाइट दिया था, इस बार गति में परिवर्तन किया था, थोड़ा जल्दी खेल बैठे, गेंद जाके पैड पे टकराई, कोई नुकसान नहीं। अपने फॉलो थ्रू में आते गेंद को उठाते। आज लगातार मैच खेल रहे हैं, पूरे दिन में आज मरगांव सब डिवीजन क्रिकेट टीम खेल रही है मैदान पर, तो बिल्कुल थक चुकी है, थकान बिल्कुल हो चुके हैं सभी खिलाड़ियों पर। एक हाथ से बिल्कुल थोड़ा सा बल्ला छूटा था, लेकिन कवर पॉइंट पर गेंद को फील्ड करते फिर से एक बार एक बिंदी गेंद, डॉट गेंद, एक अच्छा ओवर, जिस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं निकला। 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 7वें ओवर के टोटल स्कोर हो चुका है 35, 35 रन। लास्ट ओवर टू गो। लास्ट ओवर टू गो, आखिरी ओवर का खेल, और सामने एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पर दिखाई देते हुए सिद्धार्थ गावस। मैच थोड़ा सा बिल्कुल मैं तो कहूँगा 19-20 का मैदान पर दिखाई देता हुआ दूर होता जा रहा है हाथों से। मरगांव
सब डिवीजन क्रिकेट टीम के ओर से, क्योंकि एक पहले बल्लेबाजी में बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और शाम के दौर में आसान बात बिल्कुल नहीं होती, जो कि बाद में चेस करने के लिए साहिल सिद्धार्थ गावस अपने बॉलिंग बार पर। आखिरी ओवर का खेल, अंतिम ओवर का खेल। ओवर पिच गेंद इस बार सामने, अंपायर को बिल्कुल कसरत करनी पड़ी, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। थोड़ी से अंपायर को भी कसरत करनी पड़ी इस शॉट के साथ और 4 रन जुड़ते हुए स्कोर के खाते में। हर गेंद पर चौका लगा, शायद तो भी थोड़ा सा ये मैच मुश्किल है मैदान में। 4 रन 39 रन 4 विकेट पर। आखिरी ओवर का खेल जारी मैदान पर। इस बार कारपेट के साथ खेला, एक बहुत ही अच्छा शॉट, काउ कॉर्नर पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक फिर से 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। सिंगल, 40 रन टोटल, अभी भी चाहिए 47 रन और गेंदें बची है सिर्फ 4। फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद, क्लीन बोल्ड, बिल्कुल अच्छी गेंद, फिर की गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट और एक बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड करते हुए सफलता मिलते हुए 5वें विकेट का आगाज होता हुआ मैदान पर। 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मैच में बिल्कुल औपचारिकता बाकी, क्योंकि यहाँ से पगड़ा लगभग भारी हो चुका है। इस साल के ये दूसरे पर्व की चैंपियन बनने की और कदम बढ़ा रही है मैदान पर पंजिम सब डिवीजन क्रिकेट टीम। लेकिन कहीं ना कहीं सामने लगातार मैच खेलती गई और वही थोड़ी सी जो पूरी ताकत होनी चाहिए थी इस मैच में, वो नहीं लगी आखिरी मुकाबले में। न्यू बैटर मैदान पर किशोर। फ्लाइटेड गेंद, सम्मानजनक खेला, 1 रन के लिए निकले, नॉन स्ट्राइकर इन पर फिर भी निशाना लगाया, लेकिन 1 रन इसे बीच में। तो तुषार नाइक और मैं अशोक नाइक और रोहित नाइक, बहुत बहुत धन्यवाद। हंजुना जो कि पुलिस सब डिवीजन के, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभार। इतनी बड़ी प्रतियोगिता में आपने हमें मौका दिया कमेंट्री करने के लिए। सभी खिलाड़ियों का और सभी मान्यवरों का, सभी दर्शकों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और एक फ्लाइटेड गेंद निकली, एक बार फिर से बिंदी गेंद, लगभग समाप्ति की और लास्ट बॉल टू गो। तो बस चैंपियन इस साल की ये दूसरा पर्व ऑल गोवा सब डिवीजन टीम जिसमें हिस्सा लेती हुई, और इसी के साथ ये टूर्नामेंट, ये मुकाबला, ये मैच समाप्त हुआ। एक बड़ी जीत हासिल की फाइनल के मुकाबले में, 46 रनों से मैच को जीता। थोड़ा सा एक तरफी रहा ये मुकाबला, फाइनल का मुकाबला। पंजिम सब डिवीजन क्रिकेट टीम इस साल की चैंपियन, और मरगांव सब डिवीजन को जो कि रनर्स के लिए रुकना पड़ा। धन्यवाद। आइए एक बार फिर से जुड़ जाते तुषार नाइक के साथ।